today we will take up the 11th property of transition elements, and of course that property is nothing but it is the oxidation state. See, we have already done that. Why do transition element actually show variable oxidation state? See, transition element can show variable oxidation state. The reason is because I have already told you, if this is the penultimate shell n-1 and this is the outermost shell n, or I can say ns or n-1d, since both of them as usual have a comparable or compatible energy, right? That's why you will find that they have a tendency to show variable oxidation state, because there will be more number of unpaired electrons. So all transition element, right, except scandium, I'll tell you, right, although I'll be taking up that example later on, but all the transition element except scandium in the 3D series has that tendency to show variable oxidation state because of the compatible energy of ns and n-1d. There are unpaired electrons, and if there are unpaired electrons, of course you will find that what will happen, they have, or if they have unpaired electrons, you will see that there will be more unpaired electrons, and because of that unpaired electrons, we say that they show large number of oxidation state or variable oxidation. Point number one is the lowest oxidation state is always equal to the number of electrons that are present in S subshell. I repeat, it is equal to the number of electrons present in S subshell. As you can see from here, if I am talking about 3D series, scandium में +2, titanium +2, vanadium +2. Here in chromium it is +1. Here it is +2, +2, +2, +2, again +1, and S2. As usual, 4s2. That means +2. So the lowest oxidation state is always equal to what? The number of electron present in S subshell or S subshell electrons, and the highest is always equal to the number of electrons that are present. Highest oxidation state is equal to number of electrons in S subshell plus number of unpaired electrons in D subshell. Number of unpaired electrons in D subshell. Right? Now let us start. फॉर एग्जाम्पल स्कैंडियम में लोअर था 2, अब हाइयर कितना होगा? डी में एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है, तो इसका मतलब 2 + 1 3, तो ये 2 से लेके 3 तक जाएगा. ऐसे यहां देखोगे 2 + 2 4. आई रिपीट, इट इज 2 + 2 4. तो इसका मतलब क्या हुआ? 2 से लेकर 4 तक जाएगा. वेनेडियम में 2 से लेकर 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स, डी में 3 है, तो 2 + 3 5, सो 2 से लेकर 5 तक जाएगा. क्रोमियम में देयर आर डी ऑर्बिटल में 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स, तो 1 + 5 6 हो गया, तो 6 तक जाएगा. मैंगनीज 2 से लेकर 5 और डी में 5 है, तो टोटल हो गया 7, सो 2 से लेकर 7 तक शो करेगा मैंगनीज. नाउ if I'll go to iron, the number of unpaired electrons in D subshell are now decreased. वो कम हो गए बेटा. अगर आप देखेंगे 1 2 3 4 5 और 6, अब अनपेड इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 4 + 2 यानी 6 तक जाएगा, यानी 2 से लेकर 6 तक. अगर मैं कोबाल्ट में जा रहा हूं तो एक और अनपेड इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा, यानी 3 + 2 5 तक जाएगा, यानी 2 से लेकर 5 तक जाएगा, एंड सो ऑन. सो दिस इज द ट्रेंड दैट हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है और लोअर क्या होती है. आई थॉट यू हैव ऑब्जर्व्ड इन 3D सीरीज, Mn जो होता है in the middle has the greatest number of oxidation state which is from +2 to +7. इसका मतलब मैंगनीज के पास सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट होती है +7 से +2 से लेके +7 तक, which become, of course it started with 1 or 2, then धीरे धीरे इंक्रीज हुई, मिडिल में आने के बाद मैक्सिमम, और उसके बाद फिर डिक्रीज होना स्टार्ट हो गई. आई वॉज टेलिंग कि अगर हम पूरे डी सबशेल के अंदर देखें, ऑस्मियम के पास सबसे ज्यादा हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, और वो होती है +8, यानी ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड के अंदर अगर आप ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे ऑस्मियम का, दैट इज +8. द ओनली कंपाउंड ऑफ ऑस्मियम
which has an oxidation state of +8 and is highly stable. अब मैंने आपको पी ब्लॉक में ऑलरेडी एक चीज पढ़ाई हुई है, आपको याद होगा, लोअर ऑक्साइड्स आर ऑलवेज आयनिक व्हाइल हायर ऑक्साइड्स आर ऑलवेज कोवलेंट. तो मुझे ये आपको बताने की जरूरत नहीं है. यू आर ऑलरेडी अवेयर दैट लोअर ऑक्साइड्स आर ऑलवेज आयनिक एंड हायर आर ऑलवेज कोवलेंट. ये हमने फजान्स रूल के बेस पे ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है. अब यहां पर क्या किया जाता है, एक क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे क्रोमेट, डाइक्रोमेट, परमैंगनेट. आई एम गोइंग टू टेक अप द एग्जांपल ऑफ राइट नाउ परमैंगनेट. परमैंगनेट के सारे बॉन्ड्स कोवलेंट होते हैं. ऑल द बॉन्ड्स ऑफ परमैंगनेट आर कोवलेंट. हाउ? आई टेक अप दिस डबल बॉन्ड, double bond, double bond, and of course O minus. Here if you calculate the oxidation number of Mn, it is +7. So that means it is in the highest oxidation state. As I said, the highest oxidation state is always covalent. That's why all the bonds of MnO4 negative are nothing but they are covalent. Now we are going to the most important question which has been asked in CBSE 2021, as I said, the improvement paper. So question is this only: how is the variability in oxidation state of transition metal differ from that of the non-transition element? That means p block elements. So let me take up the first point that I have to take up is, see, I'll explain this with an example. अगर मैं ट्रांजिशन एलिमेंट की बात करूं, फॉर एग्जांपल अगर मैंने कॉपर वाला ग्रुप लिया, कॉपर के नीचे सिल्वर, सिल्वर के नीचे बेटा गोल्ड. Copper is suppose stable in +1 oxidation state, then silver is stable in +2 and gold is stable in +3. That means each and every element is, or from this element to this element, the oxidation state differ by, the stability of the oxidation state differ by 1. What I mean to say is, the oxidation state in transition element state differ from each other by unity. That means if it is stable in +1, then it is stable in +2, then it must be stable in +3, right? Or example 7, 8, 9, 10. This is what example. This is in contrast with the variability in oxidation state of the non-transition element. That means p block element में अगर हम बात करें, वहां पर एक कॉन्सेप्ट लगता था इनर्ट पेयर इफेक्ट. अगर जैसे मैं बात करूं 13 ग्रुप में बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, थालियम, तो बोरोन अगर +3 में स्टेबल होता था तो थालियम +1 में स्टेबल होता था. आपने देखा इन दोनों में डिफरेंस इन ऑक्सीडेशन स्टेट +2 का आ रहा है. बट वही अगर मैं 14 ग्रुप में चलूं तो कार्बन +4 में स्टेबल होता है, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड जो होता है वो +2 में स्टेबल होता है. फिर दोनों का डिफरेंस जो है वो +2 का है. 15 ग्रुप में नाइट्रोजन अगर +5 में स्टेबल होता है तो बिस्मिथ जो होता है वो +3 में स्टेबल होता है. तो आपने देख लिया बेटा यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर जो डिफरेंस इन द ऑक्सीडेशन स्टेट, अगर यहां कंजर्वेटिव एलिमेंट +1 से डिफर कर रहे हैं, यहां कंजर्वेटिव एलिमेंट जो होते हैं या टॉप मोस्ट और बॉटम मोस्ट एलिमेंट जो होता है वो +2 से डिफर कर रहे होते हैं. देयर इज अनदर पॉइंट व्हिच आई हैव टू टेक अप राइट नाउ इज, व्हिच ऑफ कोर्स आई विल शो यू, आई हैव रिटन इन द नोट्स ऑल्सो. वो पॉइंट जो है वो ये रहा, the oxidation state in transition element differ from each other. We have done this, and it is, of course, we have studied that in the p block. The second point is, heavier element of transition elements are stable in heavier oxidation state or higher oxidation state, whereas that of the p block are stable in lower oxidation state. What I mean to tell you is, here if I am talking about gold is stable in +3 oxidation state. That means heavier element with higher atomic number is stable in heavier oxidation state. But अगर हम p ब्लॉक में जा रहे हैं, दिस इज p ब्लॉक में थालियम का एटॉमिक नंबर ज्यादा है मगर वो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में स्टेबल है. यही आप p ब्लॉक में भी इनर्ट पेयर में बोलते थे कि अगर हम टॉप से बॉटम की तरफ जा रहे हैं तो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट बिकम मोर स्टेबल रेदर देन हायर ऑक्सीडेशन स्टेट. दिस इज कॉल्ड इनर्ट पेयर इफेक्ट. सो दिस इज अनदर पॉइंट. यू कैन इंक्लूड एनी ऑफ द पॉइंट बिकॉज हमने दोनों के लिए मार्किंग स्कीम में मार्क्स दिए थे. एक और पॉइंट जो अभी मैं लेकर चल रहा हूं वो ये है, the element with the stable oxidation state are given on the basis of their electronic configuration. जैसे स्कैंडियम कभी भी +3 में स्टेबल होता है. कैसे पता चला? वो 2 + 1 3 इलेक्ट्रॉन्स लूज कर देगा. टाइटेनियम 2 + 2 4 इलेक्ट्रॉन्स लूज करके +4 में. वेनेडियम +5 में स्टेबल होता है, 3 + 2 5 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा. क्रोमियम हमें पता है +3 में स्टेबल होता है बिकॉज ऑफ व्हाट?
हाफ फिल T2G ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन। और एक और चीज है, डाइक्रोमेट Cr2O7 नेगेटिव +6 में होता है और क्रोमेट भी +6 में स्टेबल होता है। Mn हमने पढ़ा था इज ऑलवेज स्टेबल इन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट बिकॉज ऑफ हाफ फिल्ड डी ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन या हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन की वजह से। और वही अगर मैं बात करूं ये रहा +7 में भी MnO4 नेगेटिव में अभी हमने प्रूफ किया। आयरन +2 +3, पैरास्फेरिक कोबाल्ट +2 +3 में स्टेबल होता है, निकल +2 +4 में स्टेबल होता है। हमने ये किया भी था, अगर आपको याद हो लास्ट क्लास के अंदर, कि निकल जो होता है +2 में स्टेबल होता है बिकॉज द सम ऑफ द टू आयनाइजेशन एनर्जी हैज अ लोअर वैल्यू। कॉपर इज ऑलवेज स्टेबल इन ईदर +1 और +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। कॉपर कभी भी या तो +1 या +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में स्टेबल होता है, आपने पढ़ा। और हमने ये भी पढ़ा था कि कॉपर कभी भी जो स्टेबल होता है वो अगर +2 ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर स्टेबल होता है तो वो होता है एक्वस मीडियम के अंदर। अगर देखा जाए तो वो एक्वस मीडियम के अंदर किस स्टेबल में होता है, +2 में ज्यादा स्टेबल होता है बिकॉज ऑफ वेरी हाई हाइड्रेशन इंथैल्पी दैट वी हैव ऑलरेडी डन। सो नाउ द क्वेश्चन इज कि इस पार्ट से सर क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं। बेटा देयर इज अ बैक क्वेश्चन ऑफ एनसीईआरटी व्हिच ऑफ कोर्स आई विल डिस्कस कि किस तरह से इसके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अभी मैं थोड़ी देर में आपके साथ वो डिस्कस करने वाला हूं, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। बट उससे पहले मैं ये बता दूं, ऑल द अबव एलिमेंट विच वी हैव जस्ट नाउ डन कि ये इसमें स्टेबल होता है, या तो वो हाफ फील्ड में होता है या फुली फील्ड में होता है, जिसकी वजह से हम उसकी स्टेबिलिटी को डिस्कस कर रहे थे, राइट। नाउ वी विल बी टेकिंग अप दैट क्वेश्चन, बट उससे पहले ये रहा, ट्रांजिशन मेटल कैन ऑल्सो हैव द टेंडेंसी टू शो द लोएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट। लोएस्ट छोड़ो, वो नेगेटिव में भी शो कर सकता है। और ये देखो ऐसे कंपाउंड NiCO4 जो अभी हम पढ़ेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट। NiCO4 FeCO5 के अंदर अगर आप निकल की ऑक्सीडेशन स्टेट देखोगे जीरो है, आयरन की FeCO5 में जीरो है, इन विच एज अ सेट। और मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बोला था स्कैंडियम इज द ओनली ट्रांजिशन एलिमेंट that shows one oxidation state, that is +3. Although you may ask me कि you have written the oxidation state of +2 also, it was the possible oxidation state that I have written. Remember, scandium is the only transition element which shows one oxidation state. Please don't talk about zinc because zinc जो होता है वो ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं होता। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, कॉपर इज द ओनली एलिमेंट इन द 3D सीरीज विच हैज स्टेबल +1 ऑक्सीडेशन स्टेट। अगर आप मुझसे क्रोमियम की बात करोगे तो मैं बोलूंगा आई हैव जस्ट रिटन द oxidation states, the combination of oxidation state, the possible ways. But remember beta, scandium is the only transition element, shows one oxidation state, that is +3, and copper is the only element in the 3D series which shows the oxidation state of what, +1, which is stable in that. Now I was asking, अगर आप ऑक्सीडेशन स्टेट पे क्वेश्चन देखोगे तो एक्सरसाइज 8.5 में है, व्हाट विल बी द स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द फॉलोइंग। जैसे 3D3, अब 3D3 होता है वेनेडियम। अगर 3D3 वेनेडियम होता है, ठीक है, तो आपने कुछ नहीं करना, आपको वेनेडियम की स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स पता होनी चाहिए। दैट मीन्स अगर मैं आपसे बोलूं कि हाउ विल यू प्रिडिक्ट द स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द एलिमेंट विच आर गिवन हेयर, जो यहां पर एलिमेंट्स गिवन है, आप कैसे प्रिडिक्ट करोगे। आई नो, अगर मैं वेनेडियम की बात करूं 3D3 है तो उसके साथ क्या होगा 4s2। तो अगर ये पांचों इलेक्ट्रॉन्स लूज कर देगा, दो यहां से तीन यहां से, तो वो +5 में स्टेबल है। 3D5 होता है क्रोमियम, मुझे पता है क्रोमियम दो ऑक्सीडेशन स्टेट में स्टेबल होता है, या तो +3 बिकॉज ऑफ व्हाट, हाफ फिल्ड और फुल्ली फिल्ड, राइट, हाफ फिल्ड T2G ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन। और मैंने अभी बताया क्रोमेट और डाइक्रोमेट +6 में स्टेबल होते हैं, तो ये +3 और +6 में। 3D5 के दो केसेस होते हैं, दूसरा होता है मैंगनीज। मैंगनीज होता है 3D5 में, तो वो होता है +2 और +7 ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर। नाउ 3D8 मैंने आपको बताया था, निकल इज ऑलवेज स्टेबल इन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट बिकॉज द सम ऑफ द टू आयनाइजेशन एनर्जी हैज अ लोअर वैल्यू। और 3D4 का तो कोई केस ही नहीं होता, सो देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ 3D4। सो क्वेश्चन अगर आ रहे हैं ऑक्सीडेशन स्टेट पे, वो इस तरह से पूछे जाते हैं, या ये which of the 3D series of the transition metal have the largest number of oxidation state and why? Manganese, because it has the most number of unpaired electron, right? Of course it shows from +2 to +7.
explain briefly how plus 2 become more and more stable in the first half of the row transition series, ये वाला क्वेश्चन, या कंपेयर द स्टेबिलिटी, वो मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका हूं कि वो पहले स्कैंडियम को छोड़ दिया जाए तो पहले प्लस 2 जो होता है वो बहुत ज्यादा स्टेबल इसलिए होता है बिकॉज शुरू में 2 इलेक्ट्रॉन लूज करना आसान होता है, दैट्स इट इज स्टेबल इन प्लस 2 ऑक्सीडेशन स्टेट। फिर जैसे जैसे कोई भी चीज अगर हाफ फील्ड या फुली फील्ड में आ जाएगी तो फिर क्या होगा, अब प्लस 2 इलेक्ट्रॉन से प्लस 3 में जाना डिफिकल्ट होता जाएगा। नेक्स्ट, ये वाला क्वेश्चन भी हम कर चुके हैं। टू व्हाट एक्सटेंट डू द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डिसाइड द स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट इन द फर्स्ट सीरीज ऑफ द ट्रांजिशन एलिमेंट। मैंने बताया था मैंगनीज प्लस 2 में स्टेबल होता है बिकॉज हाफ फील्ड में होता है, आयरन प्लस 3 में स्टेबल होता है बिकॉज अगेन वही हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन है, एंड सो ऑन। नाउ वी आर गोइंग टू टेक अप वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और वो है 8.17। ये ई नॉट वैल्यू के बेस पे है। अब क्वेश्चन है, मैंने आपको बताया था जिसकी भी ई नॉट वैल्यू ज्यादा नेगेटिव होती है वो स्टेबल होता है, ये मैंने आपको ऑलरेडी कंसेप्ट बताया हुआ है। द क्वेश्चन इज गिवन टू यू एंड नाउ द क्वेश्चन इज यूज दिस डाटा टू कमेंट अपॉन द स्टेबिलिटी ऑफ Fe3 positive acid in the solution as compared to Cr3 positive and Mn3 positive. This is the question which we have to discuss. If you go through the values which are given here, जो हमारी सबसे पहली वैल्यू है मैंने क्या किया, उसे नंबर लाइन पे प्लॉट किया। एज अ सेड, हायर द ई नॉट वैल्यू मींस ग्रेटर टेंडेंसी टू गेट रिड्यूस और गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सो इफ द फर्स्ट मॉलिक्यूल इज Fe3 प्लस की बात करते हैं, Fe3 प्लस की वैल्यू 0.80 है, ये रहा, मैंने इसे बोल्ड कर दिया। दूसरा जो मेरा सब्सटेंस है वो देखा जाए तो है क्रोमियम, ये है, और नेक्स्ट है मैंगनीज जो 1.5 है। तो अगर मैं आपको आंसर यहां से देने की कोशिश करूं, क्वेश्चन है द स्टेबिलिटी ऑफ Fe3 पॉजिटिव इन एसिडिक सॉल्यूशन एज कंपेयर टू Cr3 पॉजिटिव एंड Mn3। सो मैंने क्या लिखा, Cr3 पॉजिटिव ऑब्लिक हैज नेगेटिव ई नॉट वैल्यू, नेगेटिव ई नॉट, राइट, यानी जिसकी नेगेटिव ई नॉट वैल्यू होगी, इसका मतलब Cr3 पॉजिटिव कैन नॉट बी रिड्यूस टू Cr2 पॉजिटिव बिकॉज वैसे भी हमें पता है Cr3 पॉजिटिव जो होता है हाफ फिल T2G ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन में स्टेबल होता है। तो अगर वो हाफ फिल T2G ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन में स्टेबल है, इसका मतलब ये तो स्टेबल है जी। Mn3 पॉजिटिव Mn2 पॉजिटिव हैज लार्ज पॉजिटिव वैल्यू, सो Mn3 पॉजिटिव से Mn2 पॉजिटिव पॉसिबल है जी। क्यों पॉसिबल है? क्योंकि Mn2 पॉजिटिव स्टेबल होता है किसमें, +2 के अंदर, ठीक है। E naught value for Fe3 positive to Fe is positive but so is small, so Fe3 positive is more stable than Mn3 positive but less stable than Cr3 positive। ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, आई रिपीट माई आंसर, Fe3 positive is more stable than Mn3 positive but less stable than Cr3 positive, right? Now the next is the ease with which iron can be oxidized as compared to a similar process for either Cr or Mn। तो अगर आप यहां से स्टेबिलिटी पे चलोगे तो आयरन बिल्कुल बीच में आ रहा है ना, तो अगर देखा जाए लोअर द रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ अ स्पीशीज, इट्स ऑक्सीडेशन पोटेंशियल विल टेक प्लेस क्वाइट इजीली। अगर मैंने बोला एज Mn हैज लोअर वैल्यू ऑफ वैल्यू, ठीक है, of E naught of course, hence Mn is easily converted to Mn second and Fe is oxidized easily to among Mn, Cr and Fe। so आपको सिर्फ जो देखना है वो क्या देखना है, जो मैं ऑलरेडी आपको पढ़ा चुका था, ई नोट वैल्यू का कॉन्सेप्ट, कि जितनी, ये रहा, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल यूज टू डिसाइड द स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट, lower the electrode potential, yani more negative the standard electrode, more stable is the oxidation state of these metal, and that too in aqueous state. That is the most important thing that we have to take care of. Beta, our next property is magnetic property. Agar suppose somebody will ask you why do transition element shows paramagnetic character, remember transition element shows paramagnetic character. Answer is very simple, because again the same point, they, due to the compatible energy of, as I was telling you, due to the compatible energy of Ns and N-1d, they have unpaired electrons,
और जिसके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं दे आर ऑलवेज पैरामैग्नेटिक। बट यहां पर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ना वो है ये म्यू टोटल, इसे हम बोलते हैं मैग्नेटिक मूवमेंट। क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक मूवमेंट। तो मैं ये बता रहा था बेटा, ऑल्दो एक्चुअली पहले वाले सिलेबस में ना ये मैग्नेटिक मूवमेंट कोर्स में था, तो मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। अगर सपोज करो ये एक न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के आसपास बेटा एक इलेक्ट्रॉन, आपने पढ़ा एन इलेक्ट्रॉन इज नॉट ओनली रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस बट इट इज ऑल्सो रोटेटिंग ऑन इट्स ओन एक्सिस। यानी रोटेशन एंड रेवोल्यूशन दो चीजें होती है जी, रोटेशन रेवोल्यूशन। अब उसकी वजह से ना बेटा एक मतलब प्रॉपर्टी जनरेट होती है, दैट्स कॉल्ड मैग्नेटिक मूवमेंट विच इज एक्चुअली इक्वल टू म्यू टोटल। और ये जो म्यू टोटल होता है ये दो चीजों के बराबर होता है, म्यू ऑर्बिटल प्लस म्यू स्पिन। अच्छा, डी ऑर्बिटल्स में ना एक प्रॉब्लम होती है बेटा, डी में प्रॉब्लम क्या मतलब, डी ऑर्बिटल्स का हमने सुना है कि शील्डिंग इफेक्ट बहुत पुअर होता है, तो ये जो ऑर्बिटल वैल्यू होती है ना बेटा ये हो जाती है क्विंच्ड, क्विंच्ड। एंड दैट्स व्हाई जो भी मैग्नेटिक मूवमेंट की वैल्यू आ रही होती है यानी म्यू टोटल, वो आती है स्पिन मैग्नेटिक मूवमेंट की वजह से, और ये होता है म्यू स्पिन। तो म्यू स्पिन का फॉर्मूला जो होता है वो होता है ये अंडर रूट एन, n+2 bm बोहर मैग्नेटॉन्स। बोहर मैग्नेटॉन यूनिट होती है बेटा मैग्नेटिक मूवमेंट की। तो अगर आप मुझसे पूछोगे म्यू टोटल क्या है तो मैं बोलूंगा इट इज ऑलवेज इक्वल टू म्यू स्पिन विच इज ऑलवेज इक्वल टू दिस फॉर्मूला जिसमें n होता है नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स। सो वी विल बी टेकिंग अप द क्वेश्चन ऑन द बेसिस ऑफ दिस। हम इसके बेस पे एक क्वेश्चन लेकर चलेंगे, ठीक है। Of course, the number of if the number of unpaired electrons will increase, of course the magnetic properties or magnetic moment will increase. So हमारा जो क्वेश्चन बेसिकली इससे आता है वो क्या क्वेश्चन है वो हम लेकर चलने वाले हैं अभी। वो ये है, दैट क्वेश्चन इज दिस, कैलकुलेट द स्पिन ओनली मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ M2 पॉजिटिव जहां Z की वैल्यू 27 दे रखी है। अगर मैं आपको ऐसे बोलूं कि 27 जो है वो सपोज, चलो अगर मैं ये बोलूं Z27 है, तो Z27 है इसका मतलब कॉन्फ़िगरेशन क्या बनी, आर्गन 3d74s2। अब सीधी सी बात है, अगर मेरा एटॉमिक नंबर जो भी एलिमेंट M है जिसका एटॉमिक नंबर 27 है वो इस फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है M2 पॉजिटिव, यानी दो इलेक्ट्रॉन्स यहां से निकल जाएंगे तो 3d7 हुआ, यानी ये अगर d ऑर्बिटल है, ये मेरा d ऑर्बिटल है, 1 2 3 4, ये 1 2 3 4 5, 3d7 में अगर मैं इलेक्ट्रॉन्स को रखना स्टार्ट करूं 1 2 3 4 5 6 7, द नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स आर 3। सो अगर मैं फॉर्मूले में पुट करूं अंडर रूट n+2 बोहर मैग्नेटॉन, दैट मीन्स अंडर रूट 3 इंटू 3+2 यानी 5, दैट मीन्स अंडर रूट 3 इंटू 5 इज अंडर रूट 15। अंडर रूट 15 यानी अप्रोक्सीमेटली नियर बाय टू व्हाट 4, तो मैं अप्रोक्सीमेटली 3.85 या 3.9 लिख सकता हूं, अप्रोक्सीमेटली 4 भी लिख सकता हूं, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। सो द आंसर इज नथिंग बट इट इज 3.87 और 3.5 जो भी बोहर मैग्नेटॉन्स। नेक्स्ट है, नेम अ ट्रांजिशन एलिमेंट विच डज नॉट हैव वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। आई थॉट आई टोल्ड यू अबाउट स्कैंडियम वेरी क्लियरली। नेक्स्ट, which metal in the first series has +1 oxidation state more frequently or most frequently and why? Copper, because copper has a tendency to lose one electron to attain a stable electronic configuration of 3d10, ये रहा जो fully filled electronic configuration होती है। So on the basis of this, these are the properties of the element and of course the electronic configuration के बेस पे। बेटा, why do transition element form complexes? Simple, they form complexes because of their small size of the atoms, availability of d orbital and high nuclear charge, and variable oxidation state. These are the complexes that are being formed. FeCN6 4 minus, CuNS3 whole 4 2 positive, NiCO4. These are the complexes, that's why they form complexes.